Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine. So children, today we will do the revision of our chapter 2nd, which was analogy and classification. Okay, so we will do one question based on classification and one on analogy. Okay, so that you will get a quick review of what we have done in this chapter. Okay. So children, here I have taken this question of classification. Okay, हमने बच्चों क्लासिफिकेशन में पढ़ा था that we have to identify out of 4 options given which option is the different one. Okay, and for that आपको सारे options में check करना पड़ेगा that what rule we have applied. Okay, and by following that you will find the different option. All right, so children, as you know that there are so many questions, so it is not possible for us to do all the questions in your revision class. So I will take a question and we will do the quick review of this. Okay, classification now. So here in this question we have to classify the different option. Okay, so there are 4 options given, A, B, C and D. ओके, सो जब हमें बच्चों एक ऑप्शन डिफरेंट फाइंड करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि उसमें क्या लॉजिक और क्या रूल अप्लाई हो रहा है. ओके, ऑप्शन ए में जब आप देखोगे बच्चों, यू विल सी दैट दिस फिगर इज फॉर्म्ड ओनली बाय स्ट्रेट लाइन्स. ओके, please look carefully, there are only straight lines in this figure. Okay, there is no curve in it. Now in option B you will see there are 2 circles and there are, this is the straight line, this is the straight line, this is again a straight line and this is a straight line. So you will see there are 2 circles and 1, 2, 3, 4 straight lines. Okay, so in this option children, there is a combination of straight line and curved line, right? बिकॉज जो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं इसमें चिल्ड्रन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कर्व्ड लाइन. तो ऑप्शन बी में हमने दोनों लाइंस का यूज किया है. ओके, नाउ वी विल कम टू ऑप्शन सी. हियर अगेन यू विल सी दैट देयर इज नो कर्व इन दिस फिगर, देयर आर ओनली स्ट्रेट लाइंस. ओके, सो ऑप्शन सी इज फॉर्म्ड, this figure is formed of only straight lines. Now we will check in option D. Now here you will see children that this figure has 1 curve, 2nd curve, then 3rd curve and 4th curve. So how many curved lines are there? 4 curved lines, right? So this means children that our option D is made only of curved lines. option D में हमने सिर्फ curved lines का यूज किया है. ओके, इसमें हमने straight line का यूज नहीं किया. ओके, so now you see children, option A में straight lines है. ओके, option B में straight line and curved line दोनों lines यूज हुई है, right? ऑप्शन सी में बच्चों स्ट्रेट लाइन यूज हुई है ओनली एंड ऑप्शन डी में ओनली कर्व्ड लाइन यूज हुई है, राइट? सो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा. आवर ऑप्शन बी विल बी द डिफरेंट वन. व्हाई? बिकॉज सिर्फ एक ऑप्शन डी में बच्चों दोनों टाइप की लाइंस यहाँ पे यूज हो रही हैं, स्ट्रेट लाइन ऑल्सो एंड कर्व्ड लाइन ऑल्सो. ओके, नाउ we will do the question based on analogy. Okay children, this is the question of analogy. Okay, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनालॉजी के क्वेश्चन में बच्चों I have already explained you that there are 4 dots in the middle and
one pair of figure on the left side and another pair on the right side. Okay? अब आपको देखो राइट साइड में जो सेकेंड फिगर है वो यहाँ पे मिसिंग है एंड यू हैव टू फाइंड इट, और लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन आपको सेकेंड फिगर ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो हम राइट साइड में जो सेकेंड फिगर है उसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लेफ्ट साइड में जो सेकेंड फिगर है वो आपको यहाँ पे कैसे मिला. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूल. ओके, सो चिल्ड्रन you have to observe this figure. You will see there is a triangle and it is shaded inside, right? फर्स्ट जो फिगर है लेफ्ट साइड पे इसमें आप देखोगे एक ट्राइंगल है और वो शेडेड है इनसाइड, राइट. देन सेकेंड फिगर जो है बच्चों ये आपको कैसे मिला. फर्स्टली तो आपने ट्राइंगल को ड्रॉ किया एंड इट इज शेडेड. आप जब देखोगे फर्स्ट जो फिगर है आप इसको सेम टू सेम ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव डन, यू विल सी चिल्ड्रन ट्राइंगल जो होता है इट ऑलवेज हैव 3 साइड्स, राइट. तो आपने यहाँ पे जो ट्राइंगल के बाहर जो एक और फिगर ड्रॉ किया है इसके ट्राइंगल के आउटसाइड, इट हैज 4 साइड्स. दैट मीन्स ट्राइंगल की 3 साइड्स है और जो फिगर आपने बाहर ड्रॉ किया है इट हैज 4 साइड्स. दैट मीन्स यू हैव एडेड 1 साइड. सो जब आपने एक साइड और ऐड करी सो यू नो दैट ट्राइंगल के बाद जो स्क्वायर होता है बच्चों इट हैज 4 साइड्स. ओके, तो आपने ये स्क्वायर को ड्रॉ कर दिया. नाउ वी विल डू द सेम थिंग ऑन द राइट साइड. सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट फिगर क्या है यहाँ पर, इट हैज हाउ मेनी साइड्स 1 2 3 एंड 4. सो फर्स्टली यू विल ड्रॉ दिस सेम फिगर. अब चिल्ड्रन आपने ये जैसे आपको फर्स्ट फिगर गिवन था आपने वो ड्रॉ किया, यहाँ पे भी आपने सेम थिंग की है. नाउ यू विल चेक दैट फर्स्ट फिगर में 4 साइड्स है. ओके, जैसे भी यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल में 3 साइड्स थी तो हमने इसके बाहर जो फिगर बनाया है उसमें हमने एक साइड एक्स्ट्रा वाला जो फिगर होता है उसको ड्रॉ किया है. सो यहाँ पे देखो 4 साइडेड फिगर है ये, इसके बाहर हम जब ड्रॉ करेंगे बच्चों तो उसमें कितनी साइड होनी चाहिए, 5 साइड होनी चाहिए. और 5 साइड का जो फिगर होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम, वी विल ड्रॉ इट दिस वे. This is the figure of 5 side. Okay, you can see 1 second side, third side, fourth side and 5th side. अब आपने क्या करना बच्चों, ये जो 5th side का फिगर है 5 साइड्स का फिगर है आपको इसको यहाँ पर इसके बाहर ड्रॉ करना. ओके, नाउ यू सी स्क्वायर जो है बच्चों इसकी 4 साइड्स है और बाहर जो हमने ड्रॉ किया है इसमें 1 साइड एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स 5 साइड्स. यहाँ पे भी बच्चों हमने यही रूल अप्लाई किया है एंड वी विल डू द सेम थिंग ऑन द राइट साइड. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल फिगर. ओके, so this is also a type of question in analogy children. So already we have done all the questions in the worksheet. So today in your homework you have to revise your all the worksheets of second chapter. Okay, so that's all for today's class. Thank you for watching.